بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں انتہائی اہم خبر سے۔ اہم معاملے سے نقیب اللہ محسود قتل کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ راؤ انوار بری ہو گئے ہیں۔ راؤ انوار سمیت تمام ملزمان کے خلاف شواہد ناکافی قرار دیے گئے ہیں۔ اے ٹی سی نے 5 سال بعد نقیب اللہ محسود قتل کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ مرکزی ملزم سابق ایس ایس پی راؤ انوار سمیت دیگر ملزمان کو بری کر دیا ہے۔ 5 سال یہ کیس چلتا رہا، جو آپ کو یہ بتا دیں کہ والد کی جانب سے بھی بار بار عدالتوں کے چکر لگائے گئے۔ نقیب اللہ کے والد خود اس تمام تر معاملے کو دیکھتے رہے اور افسوس کا مقام یہ تھا کہ عدالتوں کے چکر کاٹتے کاٹتے ان کا انتقال ہو گیا، ان کو انصاف نہ مل سکا ان کی زندگی میں۔ نقیب اللہ محسود قتل کیس کی سماعت راؤ انوار کو بری کر دیا گیا ہے۔ راؤ انوار سمیت تمام ملزمان کے خلاف شواہد کو ناکافی قرار دے دیا گیا ہے۔ اے ٹی سی نے 5 سال بعد نقیب اللہ قتل کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ مرکزی ملزم سابق ایس ایس پی راؤ انوار سمیت دیگر ملزمان کو بھی بری کر دیا گیا ہے۔ فریقین کے دلائل مکمل ہونے پر 14 جنوری کو یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا۔ 51 گواہوں کے بیانات قلم بند کیے گئے ہیں اس مقدمے میں۔ تو آپ کو یہ اب تک کی اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ راؤ انوار سمیت تمام ملزمان کے خلاف شواہد کو ناکافی قرار دے دیا گیا ہے۔ نقیب اللہ محسود قتل کیس کا فیصلہ راؤ انوار کو بری کر دیا گیا۔ انتہائی اہم معاملہ، 5 سال بعد ہائی پروفائل نقیب اللہ قتل کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ مرکزی ملزم سابق ایس ایس پی راؤ انوار سمیت دیگر ملزمان کو بری کر دیا گیا ہے۔ راؤ انوار سمیت تمام ملزمان کے خلاف شواہد کو ناکافی قرار دے دیا گیا ہے۔ عدالت نے فریقین کے دلائل مکمل ہونے پر 14 جنوری کو یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ مقدمے میں جو تمام ملزمان ہیں ان کے بیانات قلم بند کیے گئے تھے۔ نقیب اللہ قتل کیس کا مقدمہ 23 جنوری 2018 کو درج کیا گیا تھا۔ مقدمے کے چالان میں 90 سے زائد گواہان کو شامل کیا گیا تھا۔ پروسیکیوشن کے 7 گواہ پولیس کو دیے گئے بیانات سے منحرف بھی ہو گئے تھے۔ بالآخر آج یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ نقیب اللہ محسود قتل کیس کا فیصلہ راؤ انوار کو بری کر دیا گیا ہے۔ راؤ انوار سمیت تمام ملزمان کے خلاف شواہد ناکافی قرار دے دیے گئے ہیں۔ اے ٹی سی نے 5 سال بعد نقیب اللہ قتل کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ مرکزی ملزم سابق ایس ایس پی راؤ انوار سمیت دیگر ملزمان بری کر دیے گئے ہیں۔ فریقین کے دلائل مکمل ہونے پر 14 جنوری کو یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا۔ مقدمے میں 51 گواہان کے بیانات بھی قلم بند کیے گئے تھے۔ نقیب اللہ قتل کیس کا مقدمہ 23 جنوری 2018 کو درج کیا گیا تھا۔ مقدمے کے چالان میں 90 سے زائد گواہان کو شامل کیا گیا تھا۔ پروسیکیوشن کے 7 گواہ پولیس کو دیے گئے بیانات سے منحرف بھی ہو گئے تھے۔ کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے نقیب اللہ محسود قتل کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے راؤ انوار سمیت تمام ملزمان کو بری کر دیا۔ مرکزی ملزم راؤ انوار سمیت تمام ملزمان کے خلاف شواہد ناکافی قرار دے دیے گئے ہیں۔ اہم معاملہ، اہم کیس، آپ کو بتا دیں کہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا جو کہ آج سنایا گیا ہے۔ نقیب اللہ محسود قتل کیس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ راؤ انوار کو بری کر دیا گیا ہے۔ راؤ انوار سمیت تمام ملزمان کے خلاف شواہد کو ناکافی قرار دیا گیا ہے۔ اے ٹی سی نے 5 سال کے بعد نقیب اللہ قتل کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ مرکزی ملزم سابق ایس ایس پی راؤ انوار سمیت دیگر ملزمان کو بھی بری کر دیا گیا ہے۔ اب سے کچھ دیر قبل ہمارے نمائندے میں بتا رہے تھے کہ راؤ انوار وہیں پر موجود تھے، دیگر لوگ بھی وہیں پر موجود تھے، ان کی آمد کا سلسلہ بھی جاری تھا، اور اب خبر یہ ہے کہ اس کیس کا باقاعدہ طور پر فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ تمام ملزمان کو اس میں بری کر دیا گیا ہے۔ فریقین کے دلائل مکمل ہونے پر 14 جنوری کو فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا۔ مقدمے میں 51 گواہوں کے بیانات بھی قلم بند کیے گئے تھے۔ نقیب اللہ قتل کا مقدمہ 23 جنوری 2018 کو درج کیا گیا تھا۔ مقدمے کے چالان میں 90 سے زائد گواہوں کو شامل کیا گیا، اور جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق پروسیکیوشن کے 7 گواہ پولیس کو دیے گئے بیانات سے منحرف ہو گئے تھے۔ 7 گواہان جو کہ اپنے بیانات سے منحرف ہوئے تھے، پھر گئے تھے، ان کا بھی تذکرہ ہے، اور ساتھ یہ بتا دیں کہ مقدمے کے چالان میں 90 سے زائد گواہوں کو شامل کیا گیا تھا۔ کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے نقیب اللہ محسود قتل کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ عدالت نے راؤ انوار سمیت تمام ملزمان کو بری کر دیا ہے۔ مرکزی ملزم راؤ انوار سمیت تمام ملزمان کے خلاف شواہد کو ناکافی قرار دیا گیا ہے۔ اسی کی بنا پر یہ فیصلہ سنایا گیا ہے کہ تمام کے تمام جو اس میں کردار تھے وہ اب بری ہو چکے ہیں، اور ساتھ ہی جو اہم کردار تھے ان کو بھی بری قرار دیا گیا ہے۔ راؤ انوار سمیت تمام ملزمان کے خلاف شواہد ناکافی ہیں۔ نقیب اللہ محسود قتل کیس کا فیصلہ راؤ انوار کو بری کر دیا گیا۔ جی ہاں، کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے نقیب اللہ قتل کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ سابق ایس ایس پی راؤ انوار کو بری کر دیا ہے، ان کے ساتھ ساتھ دیگر ملزمان کو بھی بری کر دیا ہے۔
नाकाफी शवाहिद होने की बिना पर उनको बरी किया गया है। और इस केस से मुतालिक हम आपको ये भी बता दें कि एटीसी ने 5 साल बाद नकीबुल्लाह कत्ल केस का फैसला सुनाया है। फरीकैन के दलाल मुकम्मल होने पर 14 जनवरी को फैसला महफूज किया गया था। मुकदमे में 51 गवाहान के बयानात भी कलमबंद किए गए थे, जबकि ये भी हम आपको बताएं कि मुकदमे के चालान में 90 से ज्यादा गवाहान को शामिल किया गया था। नकीबुल्लाह कत्ल केस का मुकदमा 23 जनवरी 2018 को दर्ज किया गया था और प्रोसिक्यूशन के 7 गवाह पुलिस को दिए गए बयानात से मुनहरिफ भी हो गए थे और इस मुकदमे में 51 गवाहान के बयानात कलमबंद किए गए थे और मुकदमे के चालान में 90 से ज्यादा गवाहान को शामिल तफ्तीश भी किया गया था। मरकजी मुलजिम साबिक एसएसपी राव अनवार समेत दीगर मुलजिमान को बरी किया गया है और इस फैसले में यह बताया गया है कि नाकाफी शवाहिद होने की बिना पर ये फैसला सुनाया गया है और नाकाफी शवाहिद होने की बिना पर इन मुलजिमान को बरी किया जा रहा है। नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस का ये फैसला राव अनवार को बरी कर दिया गया है। राव अनवार समेत तमाम मुलजिमान के खिलाफ शवाहिद नाकाफी करार दिए गए हैं। एटीसी ने 5 साल बाद नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस का फैसला सुना दिया है। मरकजी मुलजिम साबिक एसएसपी राव अनवार समेत दीगर मुलजिमान को बरी कर दिया गया है। फरीकैन के दलाल मुकम्मल होने पर 14 जनवरी को फैसला महफूज किया गया था। मुकदमे में 51 गवाहान के बयानात कलमबंद किए गए थे। नकीबुल्लाह कत्ल केस का मुकदमा 23 जनवरी 2018 को दर्ज किया गया था। मुकदमे के चालान में 90 से ज्यादा गवाहान को शामिल किया गया था। प्रोसिक्यूशन के 7 गवाह पुलिस को दिए गए बयानात से मुनहरिफ भी हो गए थे। इसी हवाले से बात करेंगे। नुमाइंदा खुसूसी इरफान उल हक हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, यकीनी तौर पर अब ये फैसला आ गया है, इस वक्त जो अदालत कमरा अदालत है वहाँ पर इस वक्त क्या माहौल है, क्या बता सकते हैं? और 5 साल के बाद इसका अब ये बाकायदा तौर पर फैसला आया है, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, जो मुख्तसर फैसला अदालत ने सुनाया है उसमें करार दिया है कि नकीबुल्लाह और उसके साथियों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें ले जाकर पुलिस मुकाबले में कत्ल कर दिया गया है। उनके खिलाफ जो दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया था नकीबुल्लाह और उसके साथियों का, वो भी चूंकि सी क्लास कर दिया गया था और वो फैसला अब तक फील्ड में मौजूद है। इसका मतलब यह है कि नकीबुल्लाह और उनके साथियों के खिलाफ जो इल्जाम पुलिस ने लगाए थे वो भी साबित नहीं हो सके हैं। ताहम जो राव अनवार साबिक एसएसपी राव अनवार और उनके साथियों के खिलाफ जो जाली पुलिस मुकाबले का इल्जाम लगाया गया था उसके हवाले से प्रोसिक्यूशन शवाहिद पेश करने में नाकाम रही है। जो मजमूई तौर पर 51 गवाह सरकारी गवाह प्रोसिक्यूशन के गवाह पेश किए गए अदालत में, जिनका बयान कलमबंद हुआ है, उन्होंने भी कोई बराह रास्त सबूत नहीं पेश किया राव अनवार और उनके साथियों के खिलाफ कि ये यहाँ पर ले जाकर उसे नकीबुल्लाह और उसके साथियों को कत्ल किया गया था। ये JIT के मुताबिक एक जाली इनकाउंटर था। जाली इनकाउंटर में तमाम तर वाकया पेश आया, जिसकी 12 हमने देखा कि नकीबुल्लाह के वालिद की जानिब से भी बड़ी मजम्मत की गई थी और वो उन्होंने अदालतों के भी बड़े चक्कर लगाए और इसी बिना पर हम देखते हैं कि जब वो अदालतों के चक्कर काटते काटते थक गए, यहाँ तक कि उनका इंतकाल हो गया। तो अब ये बताइएगा कि तमाम तर शवाहिद को सामने रखते हुए फैसला दिया गया है। आप बता रहे हैं कि इस मामले में अदालत ने जो शवाहिद उनको नाकाफी करार दिया है। जी बिल्कुल, अदालत ने जो मुख्तसर फैसला सुनाया है उसमें ये करार भी दिया है, बल्कि गुज़िश्ता दिनों इस केस के हवाले से एक अखबार में आर्टिकल छपा था, उसका भी अदालत ने हवाला दिया और अपने तबसरे में ये कहा है इंफरादी दहशतगर्दी अदालत के मौजूद जज ने कि इस तरह के तबसरे अदालती फैसले पर असर अंदाज होने के मुतरादिफ हैं। लिहाजा जो मीडिया पर चीज़ें आती हैं वो हक़ाइक़ के मुनाफी होती हैं या उसके खिलाफ होती हैं या उससे मुख्तलिफ होती हैं। इसलिए अदालत ने अपने फैसले में करार दिया है कि ये तमाम तर शवाहिद को सामने रखा गया है। JIT का जो की फाइंडिंग थी उसके मुताबिक ही चालान बनाया गया, पुलिस ने उसके मुताबिक ही केस तैयार किया, उसके मुताबिक ही प्रोसिक्यूशन ने केस चलाया। ताहम अदालत ने अपने फैसले में करार दिया है कि जो अब बराह रास्त कोई भी सबूत ऐसा पेश नहीं किया जा सका जिससे ये साबित हो सके कि ये जो मुल्ज़िमान हैं, जो गिरफ्तार हैं या जमानत पर हैं या फिर मफरूर हैं, इन्होंने बराह रास्त इसमें ये मुलव्विस हैं। ये जरूर साबित होता है कि नकीबुल्लाह और उसके साथियों को कत्ल किया गया है, मगर ये कहीं साबित नहीं हुआ कि ये जो मुल्ज़िमान हैं इन्होंने ही नकीबुल्लाह और उसके साथियों को वहां ले जाकर इस फैसले से मुतालिक तफसील आप हमें बता रहे हैं। आप हमारे साथ ही रहिए। ब्यूरो चीफ कराची असलम खान साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। असलम खान साहब, इस फैसले की तफसील बताने से पहले इस फैसले और इस केस का जो पस मंजर है वो हमारे साथ शेयर कीजिए। 5 साल इस केस में होता क्या कुछ रहा, ये वाकया जब पेश आया उसके बाद क्या कुछ हुआ, नकीबुल्लाह कत्ल केस के बाद इसके वालिद ने क्या कुछ बर्दाश्त किया, ये पस मंजर भी ज़रा शेयर कीजिए।
बात हम करें इस केस की तो 5 साल तक ये केस चलता रहा। 13 फरवरी का ये वाकया है, लेकिन इस मुकदमे के इंदराज में भी ताखिर हुई और 23 जनवरी 2018 को ये मुकदमा दर्ज किया गया था। 13 फरवरी 2018 में एक होटल से नकीबुल्लाह समेत 4 अफराद को उठाया गया था। शाह लतीफ टाउन का ये एक इलाका है, वहां पर ये इत्तला दी गई थी कि कुछ दहशतगर्द मौजूद हैं और उसके बाद वहां पर मुकाबले में 4 मुल्जिमान की हलाकत को जाहिर किया गया था। इस पर नकीबुल्लाह के वालिद ने एहतजाज किया, सोराब बोर्ड पर एहतजाजी धरना दिया गया था, जिस पर पुलिस के आला अफसर वहां पर पहुंचे थे और उसमें उन्होंने अब पुलिस को मुबैना तौर पर उस पर जो एक एलामिया कहें उसको आप, या एक जो एक ताज़ाती इज्तिमा था उससे खिताब में जो आला पुलिस अफसरान थे उन्होंने इसमें पुलिस की गलती को तस्लीम किया गया था। ये यकीन दिलाया था कि इस मुकदमे में जो भी गलतियां हुई हैं पुलिस से उनको दूर किया जाएगा। देखिए 13 जनवरी का ये वाकया है, लेकिन इस मुकदमे का अब पुलिस के खिलाफ इंदराज भी 23 जनवरी 2018 को हुआ। 10 रोज की ताखीर से इस मुकदमे का इंदराज हुआ। फिर जो चालान दाखिल किया गया था उसमें भी ये बताया गया था कि जो मुकदमे का जो गवाह है पुलिस वाला, उससे जो SHO शाह लतीफ टाउन से अमानुल्लाह मर्द, उन्होंने फोन करके जाए वकुआ पर बुलाया था, जो एक पोल्ट्री फार्म के करीब बुलाया गया था। तो ये इस तरह के मामला पे जो चालान था उस चालान में ये बताया गया कि जब अंदर पुलिस की टीमें पहुंची है तो वहां पर लाशें 2 एक कमरे में और दूसरी 2 कमरे में पड़ी हुई थी, ऐसा चालान में बताया गया। जब जो गवाह था उसने ये बताया कि जब वहां पर पहुंचा तो SSP मलिर राव अनवर साहब, शुएब शेख और शूटर, SHO शाह लतीफ टाउन मौके पर मौजूद थे। और जिस तरह इरफान ने भी अब बताया कि 14 जनवरी को तकरीबन 5 साल तक ये केस चलता रहा और उसके बाद फैसला महफूज किया गया था। इस मुकदमे में जो सरकारी जो एहलकार, जो पुलिस वाले जो नामजद थे, 51 गवाहों के बयान उसमें कलमबंद हुए और मुकदमे के चालान में 90 से ज्यादा गवाहों को शामिल किया गया था। और प्रोसिक्यूशन के जो 7 गवाह हैं वो अपने बयान से मुनरिफ भी हो गए थे। खान साहब, कतई कलामी की माजरत, आप बड़ी डिटेल से हमें बता भी रहे हैं और इससे कबल इरफान ने भी हमें बताया, यकीनी तौर पर इस केस का पस मंजर हम सब के सामने है। 5 साल के बाद यही फैसला आया है कि बरी कर दिया गया और बताया गया है कि शवाहिद नाकाफी हैं। क्या समझते हैं आप इस फैसले को, किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्योंकि इतना लंबा अरसा एक केस को प्रोलॉन्ग करना, इसमें वालिद की फिर मौत भी वाक़ हो जाना और फिर इंसाफ के हुसूल के लिए एक मरतबा फिर हम देख रहे हैं कि एक फैमिली इस तरह से लड़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, पहले भी जो आपने बात की कि बदकिस्मती से मुकदमात के बरवक्त फैसलों में एक ताखीर एक होती है, जो एक हमारे पास एक निज़ाम है, जो जुडिशल सिस्टम है, गवाहों के साथ रिकॉर्ड किए जाने का, शवाहिद जमा किए जाने का। लेकिन इस केस में अगर हम देखें कि जो एक आला तरीन सतह तक इस केस का नोटिस भी लिया गया था और यकीन दहानी भी कराई गई थी कि जो मुख्तलिन है उनके वरसा को इंसाफ अब मिलेगा। पुलिस पर ही इल्जाम था और जाहिर है पुलिस ने एक मुकाबला भी शुरू किया गया था, लेकिन जो रिकॉर्ड बाद में अगर हम कहें कि कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड इस तरह का मुल्जिमान के सामने नहीं आया था। और जो गवाह सरकारी पुलिस एहलकार जो थे उन्होंने भी ये बताया कि जब वो पहुंचे तो टीमें मौजूद थी, मुकाबला वहां पर हो चुका था, मुकाबले का कह के बुलाया गया था, चालान में इस तरह की बातें की गई। क्या बात है कि दोबारा उनके वालिद साहब अगर हम करें कि इस 5 साल के दौरान धरने भी होते रहे, फिर पूरा सोराब गुट पर ताज़ा इज्तिमा भी जमा होता रहा, वहाँ पर पुलिस अफसर की न्याय भी कराते रहे और पुलिस को मुलविस भी करा गया था, पुलिस की गलती का एतराफ भी किया गया था। लेकिन जाहिर है कि जब जो असलम खान साहब साथ रहिए, कुछ डिटेल्स इरफानुल हक से भी लेते हैं। इरफान, जिस तरह से पुलिस के किरदार पर भी बात की है, अदालती रिमार्क्स उस रात जो पुलिस मुकाबला हुआ था उस बारे में कुछ आए? वो मुकाबला असली था, जाली था? अदालत ने उस बारे में क्या कहा? कोई रिमार्क्स दिए इस बारे में? इरफान, कुछ सुन पा रहे हैं आप? असलम खान साहब, अदालती रिमार्क्स कुछ उस पुलिस मुकाबले के बारे में सामने आए? कुछ तफसील आपके पास इस बारे में है जो पुलिस मुकाबला उस रात हुआ था? जी, पुलिस के हवाले से जो जब ये समाअत होती रही थी तो पुलिस उस मामले को मशकूकी करार दिया, खुद पुलिस अफसरान भी इस मामले को मशकूक करार दे रहे थे। ऐसा नहीं था कि मुकाबले में ये कहा गया कि दुरुस्त करार दिया गया। मशकूक तो जो पुलिस अफसरान जो इंक्वायरी कमेटी बैठी थी उसने भी मशकूक करार दिया था। अदालती रिमार्क आज के फैसले को आप हट करके पहले देखें, दौरान समाअत तो मामले को मशकूक करार दिया गया था। मुबैना तौर पर ये कहा गया था जो एक तफ्तीशी जराये की जाने से कि 10 लाख रुपए न देने पर ये कत्ल किया गया इन 4 अफराद को, भत्ता न देने पर, एक तरीके से देने पर, इस तरह के जराये से खबरें आई थी। और जहां तक आप रिमार्क की बात कर रहे हैं तो तफ्तीशी जो टीमें जानिब से भी जो पुलिस के आला अफसरान जो मौके
इतना हाई प्रोफाइल केस बना था कि इस पे कमेटियां। ठीक है असलम खान साहब, आपकी जानिब दोबारा भी आएंगे, कुछ डिस्टॉर्शन आ रही है आपकी आवाज़ में, दोबारा आपसे रब्ता करेंगे और इरफानुल हक से भी कोशिश करेंगे कि मजीद बात कर सकें। आपको बता दें कि कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस का फैसला सुना दिया है। अदालत ने राव अनवार समेत तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया है। मरकजी मुल्जिम राव अनवार समेत तमाम मुल्जिमान के खिलाफ शवाहिद को नाकाफ़ी करार देते हुए ये फैसला सुनाया गया है। फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर 14 जनवरी को फैसला महफूज किया गया था। मुकदमे में 51 गवाहों के बयान थे जो कि कलम बंद किए गए थे, जबकि नकीबुल्लाह कत्ल का मुकदमा 23 जनवरी 2018 को दर्ज किया गया था। मुकदमे के चालान में 90 से जायद गवाहों को शामिल किया गया था। असलम खान साहब, आप कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी बात को। जो आपने आपकी जो सवाल था कि रिमार्क्स अगर हम देखें तो उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया था, एक गलती को तस्लीम किया गया था, लेकिन अब जो फैसला है तो जाहिर है कि अब देखना होगा कि उनके जो पुलिस है और उसके हवाले से क्या जो होता है केस पर तहफ़्फ़ुज़ात जारी करते हुए इस पर नज़रसानी की दरख्वास्त जारी करेंगे, क्योंकि जब उनके वालिद हयात थे तो वो मुसलसल एक एहतजाज करते रहे। असलम खान साहब, कता कलामी की माजरत, आप बड़ा अहम नुक्ता उठा रहे हैं, नजर सानी की दरख्वास्त के हवाले से आप बात कर रहे हैं, तो अगर नजर सानी की दरख्वास्त वो दायर कर देते हैं जो उनके घर वाले हैं, जो फरीकैन हैं, तो उसके बाद इस केस को फिर दोबारा भी सुना जा सकता है, इस पर नजर सानी की जा सकती है? बिल्कुल बिल्कुल सुना जा सकता है, लेकिन सबसे अहम नुकता यही होगा कि उनके वर्षा की जानिब से नजर सानी की दरख्वास्त उसमें दायर की जाए। वैसे इसमें हुकूमत भी कर सकती है, इस पे जो एडवोकेट जनरल है उनकी। असलम खान साहब साथ ही रहिए, इस वक्त राव अनवार साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, वो सुन लेते हैं। साकिब निसार ने मेरे पे झूठा केस बनाया इन पुलिस वालों के साथ मिलकर और अल्लाह ताला ने उसमें मुझे कामयाबी दी। ठीक है राव साहब, थैंक यू। जस्टिस साकिब निसार ने मेरे खिलाफ झूठा केस बनाया, ये कहा जा रहा था, और राव अनवार की जानिब से कहा गया था कि अल्लाह ने मुझे इस केस में कामयाबी दी है। आपसे कुछ देर कबल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और अब हमारे साथ मौजूद थे असलम खान साहब, वो भी इस तमाम तर मामले के हवाले से बता रहे थे। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस का फैसला सुना दिया है। अदालत ने राव अनवार समेत तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया है। हाई प्रोफाइल केस का फैसला आज सुना दिया गया है। कराची इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस का फैसला सुनाया है। अदालत ने राव अनवार समेत तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया है। मरकजी मुल्जिम राव अनवार समेत तमाम मुल्जिमान के खिलाफ शवाहिद नाकाफी करार दे दिए गए हैं। ब्यूरो चीफ कराची असलम खान साहब साथ ही मौजूद हैं। असलम खान साहब, राव अनवार साहब की मुख्तसर गुफ्तगू हम सुन पाए हैं, वो ये कह रहे हैं कि झूठा केस उनके खिलाफ बनाया गया था, और उससे पहले आप जो गुफ्तगू कर रहे थे उसको मुकम्मल भी कर लीजिए। जब ये एक गवाह जो थे, सरकारी गवाह, उनको जब एक चालान में बयान जो रिकॉर्ड कराया गया था या हवाला देकर, उसमें बताया गया कि जब गवाह वहाँ पहुंचा तो SSP मली राव अनवार वहाँ मौजूद थे, शाह लतीफ टाउन के SHO अमानुल्लाह मरवत वहाँ मौजूद थे, शेख और शूटर भी वहाँ पर मौजूद थे, और जो पोल्ट्री फार्म था उसके दो कमरे में दो लाशें एक कमरे में और दो दूसरी जगह मौजूद थी। SSP साहब मौजूद थे। राव अनवार साहब ने बाद में मीडिया से कहा कि वो मुकाबले के बाद पहुंचे थे, उन्हें इतला दी गई थी कि मुकाबला हो गया है, और जब वहाँ पहुंचे तो वहाँ पर 4 मुल्जिमान थे, उन्हें ये इतला थी कि दहशतगर्दों से मुकाबला हुआ है, वो वहाँ पहुंचे तो मुकाबला हो चुका था। अमूमन इस तरह की सूरत हाल में SSP साहब शोहरत भी रखते हैं कि मुकाबले जो खासे दहशतगर्दों की हलाकत का इस तरह के मुकाबलों में। लेकिन जो नकीबुल्लाह वाले मामले में जब चीजें सामने आई थी कि 13 जनवरी को उठाया गया उनको, वो 13 जनवरी की तारीख थी, वहाँ पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने ये दावा किया था। बाद में फिर उन्होंने कहा कि वो पहुंचे जरूर थे मुकाबले में, लेकिन वो हो चुका था मुकाबला, फिर पहुंचे थे, और दावा उनका ये था कि ये मुल्ज़मान है, इनके खिलाफ क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। जब वालिद और दीगर वसा की जानिब से एहतजाज हुआ तो तकरीबन 10 रोज के बाद पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा हुआ, और फिर एक के बाद दीगर गिरफ्तारियां भी हुई थी। एक ही साथ गिरफ्तारियां नहीं हो सकी थी, कुछ मुल्ज़मान रिपोर्ट हुई, फिर बाद में उन्होंने गिरफ्तारियां दी थी। एक 5 साल का पूरा एक प्रोसेस चला था। अब वो ये कह रहे हैं बेगुनाही का दावा उनकी जानिब से जरूर आया है, वो कह भी रहे हैं मीडिया पर भी, लेकिन वहां पर मौजूद जरूर रहे, भले से वो पहुंचे, लेकिन जब मीडिया की टीमें पहुंची थी तो वहां पर उन्होंने ये कहा था कि वो पहुंचे थे तो यहाँ पर मुकाबला हो चुका था। और जो गवाह था उसने भी ये चीजें की, वो जो हथियारों का मामला भी बड़ा मामला मशहूर हुआ था। तो ये सारा मामला ही एक तरीके से बड़ा, जिसे कहते हैं कि मीडिया में हाईलाइट रहा। जो शवाहिद, जाहिर है कि कोर्ट में शवाहिद पेश किए जाने होते हैं, ये बहुत सारी बातें वहां पर रही थी कि मुल्ज़िमान कोई मज़ाहमत के इस तरह के आसार नहीं थे या मुकाबले के इस तरह आसार नहीं मिले थे, जो तफ्तीशी शवाहिद अब सामने आ गए। लेकिन जाहिर है कि 5 साल तक, और एक सवाल आपने भी कहा
यकीनी तौर पर ये बहुत तासीर होती है। और जो वर्षा थे उन्हें पूरे तौर पर इंसाफ की यकीन दहानी कराई गई थी बहुत आला सतह पर। अगर हम बात करें कि जो मजमूई तौर पर वजीर आजम सदर इस सतह तक भी नोटिस लिया गया, पुलिस हुक्काम की तरफ से भी और सिक्योरिटी इदारों के हुक्काम की जानिब से भी कहा गया कि जो मुलव्विस कार्रवाई की जाएगी। और जहां तक बात करते हैं कि इतना ताखीर भी हुई और उसके साथ साथ जो वर्षा, अगर ये सब बेगुनाह है तो फिर ये जो मुकाबले में हालात। अच्छा असलम खान साहब, आपकी जानिब दोबारा भी आएंगे। अब से कुछ देर कबल राव अनवार गुफ्तगू कर रहे थे, पहले अपने नाज़रीन को वो दिखा देते हैं। जो इसमें जो दूसरे सपोर्टर थे इनके, यहाँ तक के एक वकील ने अपनी बीवी को भी यूज किया है, उसकी बीवी ने भी अपनी मशहूरी के लिए, अपनी पेंटिंग के लिए जो है वो इस केस में घुसी है और झूठे पत्थर रख के नाजायज नुमाइश लगाई। एक आदमी का नाम नहीं था, 444 लोगों का जो इन्होंने मेरे पे इल्जाम लगाया था वो 444 भी सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दी। साकिब निसार ने मेरे पे झूठा केस बनाया इन पुलिस वालों के साथ मिलकर और कामयाबी दी। साकिब निसार ने मुझ पर झूठा मुकदमा बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कामयाबी मिली है। और इससे कबल राव अनवार ने जो मजीद गुफ्तगू की है, हमने अपने नाजरीन को वो भी सुनवाई है। उनकी जानिब से क्या इस वक्त मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है, अपने नाजरीन तक हमने वो भी पहुँचाया है। और इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए नुमाइंदा खुसूसी इरफान उल हक जो कि इस केस को मुस्तकिल तौर पर देख भी रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इरफान, बताइएगा, जो कमरे अदालत में तमाम तर मामला होता रहा है, हमने देखा कि इस तमाम तर मामले को GIT की जानिब से झूठा करार दिया गया था, झूठा इनकाउंटर यानी फेक और जाली इनकाउंटर कहा गया था। इस सिलसिले में कोई रिमार्क्स भी सामने आए हैं? देखिए, फैसला सुनाने से पहले अदालत ने एक तबसरा किया है कोर्ट में आकर, और उन्होंने सब वकला को और सहाफी जो अदालत में मौजूद थे उन्हें भी मुखातिब किया और उसके बाद पहले इसका बैकग्राउंड केस का बताया है। फैसला सुनाने से पहले अदालत ने ये तबसरा किया क्योंकि ये बहुत हाई प्रोफाइल केस है, इस पर निगाहें हैं बहुत सारे लोगों की, बल्कि शायद पूरे पाकिस्तान की निगाहें हों, मगर अदालत जो है वो शवाहिद की बुनियाद पर फैसला करती है। जो हमारे पास शवाहिद है उसकी बुनियाद पर फैसला करेंगे। जो मरकजी पॉइंट थे, जो मरकजी नुकात थे, उसका हवाला अदालत ने पहले दिया है। और अदालत ने कहा कि सबसे पहला पॉइंट हमारे सामने ये था जजमेंट लिखते हुए कि ये नकीबुल्लाह और उसके साथियों को होटल से उठाया गया है और वहाँ कहीं और मुंतकिल किया गया है या नहीं। तो उस पर अदालत ने कहा हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि नकीबुल्लाह और उसके साथियों को यहाँ से जरूर उठाया गया और कहीं दूसरी जगह ले जाया गया। दूसरा पॉइंट अदालत के सामने ये था कि क्या नकीबुल्लाह और उसके साथियों का वहाँ पर कत्ल साबित होता है या नहीं। दूसरा पॉइंट भी अदालत ने अपने फैसले में कहा कि ये हम इस नतीजे पर पहुंचे कि जो दूसरा पॉइंट था वो भी ये एस्टैब्लिश हुआ है कि नकीबुल्लाह और उसके साथी यानी मजमूई तौर पर 4 अफराद ऐसे थे जिनमें कत्ल किया गया है। अब तीसरा पॉइंट अदालत के सामने ये था कि ये जो कत्ल है नकीबुल्लाह और उसके साथियों का वो किसने किया है। जो मरकजी जो मुल्जिमान हैं इस केस में नामजद किए गए हैं, क्या वो इस केस में बराह रास्त मुलव्विस है या उनका हाथ है इसमें। तो इस पॉइंट को जब हमने शवाहिद के सामने रखा है, अदालत का ये कहना है कि तमाम तर शवाहिद का हमने जायजा लिया है, जो फेंसिंग का भी जायजा लिया है, गवाह अदालत में पेश किए गए उसका भी जायजा लिया है, जो टेक्निकल पॉइंट थे उसका भी जायजा लिया है कि वक़ूए के वक्त राव अनवार और उनके साथी जिनको नामजद किया गया है वो कहाँ थे। इन तमाम तर शवाहिद को हमने सामने रखा है और हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मरकजी मुल्जिम राव अनवार समेत उनके जितने भी साथी इस मुकदमे में नामजद किए गए थे उन पर ये इल्जाम साबित नहीं होता है कत्ल का। ताहम ये जरूर इस्टेब्लिश हुआ है कि जो नकीबुल्लाह और उसके साथी हैं उनका कत्ल जरूर हुआ है। अदालत ने अपने फैसले में ये भी कहा कि जो पहला मुकदमा दर्ज हुआ था नकीबुल्लाह और उसके साथियों का, एक मुकाबला था जिसमें नकीबुल्लाह और उसके साथियों को कत्ल किया गया और उन्हें दहशतगर्द करार दिया गया, वो मुकदमा खत्म हो चुका था। ठीक है, यानी अदालत ने कहा जो पहला मुकदमा दर्ज किया गया था वो खत्म हो गया था, उसके बाद तमाम तर शवाहिद और इनको देखते हुए तमाम तर फैसला दिया गया है। क्योंकि अदालत की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया है कि फैसला देने के लिए किसी भी किस्म का शवाहिद ज़रूरी होते हैं और इस मामले में शवाहिद नाकाफ़ी हैं, जिसके बिना पर यह फैसला दिया गया है कि राव अनवार को बरी कर दिया गया है। इरफान हमारे साथ मौजूद थे, बेहद शुक्रिया। इसके अलावा असलम खान साहब ने भी हमारा साथ दिया, दोनों का बेहद शुक्रिया। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।
the production and all the other things. So it's a good development. Both countries benefit from it, and Afghanistan is very happy. But as I said, we are pending approval from the Pakistan government, or my sense is approval will be granted. That's my sense. But abhi is still in the pipeline. जी सर. Sorry? देखिए, that is not our business. We don't like interfering in the internal affairs of other countries. और आपको पता है मेरा ज़ाती मौक़िफ़ क्या है कि cricket and politics should not mix. Cricket को politics को cricket से बाहर रखना चाहिए. So, following that principle, pending government approval, we will play Afghanistan. अस्सलाम वालेकुम सर. सर इरफान फ्रॉम सुनो न्यूज़. सर आपको बहुत मुबारक हो न्यू असाइनमेंट के लिए. 2 क्वेश्चन है मेरे सर. आपका आते साथ ही स्टेटमेंट थी मिकी आर्थर के रिगार्डिंग के फॉरेन कोच की तरफ हम जाएंगे और वो जो नेपोटिज्म का मसला आ जाता है उसको एड्रेस करना चाह रहे थे. अभी उसका क्या वे फॉरवर्ड है? और दूसरा एक स्पेकुलेशन हमने सुनी काफ़ी सीरीज़ के बाद, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बाद, कि शायद 3 हमारे कैप्टन भी हो सकते हैं, तीनों फॉर्मेट के डिफरेंट. आपने दोनों को 3 सवाल एक ही सवाल में कर दिए, एक एक करके करें. चले कोचेस का पहले आप कौन सा इसमें से एक सेलेक्ट कर लें. कोई कोच का पहले बता देंगे. कोच क्या, बाकी फिर सवाल औरों के लिए छोड़ दें. ठीक है सर. कोच का बता. अच्छा, कोच की बात. कोच, मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था कि मिकी आर्थर का चैप्टर मैंने क्लोज नहीं किया था और अभी भी क्लोज नहीं हुआ. आई एम इन नेगोशिएशन पर्सनली विद मिकी और मैं समझता हूं कि 90% रास्ता हमने कवर कर लिया है एंड होपफुली वेरी सून. चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी लाहौर में इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं. नजम सेठी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको बराह रास्त ले चलते हैं. मेरे सामने तो कोई इशू नहीं आया कोई. जी अकील साहब. सेठी साहब, 4 फरवरी को बहरीन में इजलास होने जा रहा है, जो उसमें हमारा पाकिस्तान का पीसीबी का वही स्टांस होगा कि एशिया कप जो है वो पाकिस्तान में और मेज़बान पाकिस्तान होगा. देखें, अगर मैंने सारी अपनी नेगोशिएशन जो है यहीं डिस्क्लोज कर दी तो फिर मेरे पास क्या होगा वहाँ. तो ये जो सारी चीज़ें हैं, जो डिस्कशंस वहाँ होनी है, ऑप्शंस क्या हैं क्या नहीं है, ये मैं कीपिंग इट क्लोज टू माई चेस्ट. मैं कोई हिंट नहीं देना चाहता मैं वहाँ क्या मौक़िफ़ लूँगा. मुझे इजाज़त दे कि मैं वहाँ सिचुएशन देख के कोई मौक़िफ़ बनाऊँ. ज़ाहिर है इट विल बी इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान. कादिर ख्वाजा और फिर अबू बकर. अस्सलाम वालेकुम सर. बड़ी स्पेकुलेशन थी कि बाबर आजम जो हैं वो तीनों फॉर्मेट के कप्तान नहीं रहेंगे और अब PSL है, इस वजह से ये मामला दब चुका है. अचानक जो है वो बाबर आजम का भी आया सुनने में कि शान मसूद को नायब कप्तान बना दिया जाता है और शायद अफरीदी भी बोलते हैं ऑन कैमरा कि मेरी भी कंसर्न के बगैर नहीं है, मुझे भी नहीं पता था इस फैसले का. तो आप बाबर आजम का सर मुस्तकबिल थोड़ा बताइएगा. शान मसूद को किस हवाले से नायब कप्तान बनाया गया ये भी थोड़ा बताइए. देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कैप्टन, वाइस कैप्टन, चीफ सेलेक्टर ये मेरा अपॉइंटमेंट है. जाहिर है मैं बहुत से लोगों को कंसल्ट करता हूँ. आप लोगों में भी बहुत से लोग हैं जिनको मैं कंसल्ट करता हूँ. किसी को डायरेक्टली करता हूँ, किसी की मैं आपकी व्यूज़ सुनता हूँ, तो फिर जाके कोई फैसला करते हैं. तो जाहिर है उसके ऐसे नहीं होता कि आर्बिट्ररी किसी को लगा दिया. ये अब बात यह है कि मैं, शाहिद इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड एंड ऑल्सो वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट प्लेयर्स एवर. मैं बड़ी इज्जत करता हूँ उनकी और जाहिर है आई विल नेवर से एनीथिंग टू कॉन्ट्रडिक्ट व्हाट ही इज सेइंग. बट मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मैंने बहुत कंसल्टेशन की थी इसके पीछे और एक सोच भी है. इससे ज़्यादा मैं शायद नहीं कहना चाहूँगा, मुनासिब भी नहीं है. वी डोंट वांट अ कंट्रोवर्सी ऑन दिस इशू. मगर बात यह है कि अगर मैंने वाइस कैप्टन लगा दिया तो मैंने ये तो नहीं इंसिस्ट किया कि इसको खिलाएं आप, क्योंकि उन्होंने नहीं खिलाया उनको. सही है ना, नहीं खिलाया उन्होंने, तो इट्स ओके. जो मेरी राइट थी वो मेरी राइट थी, जो टीम कैप्टन और कोच की और सिलेक्टर्स की उस वक्त राइट थी ऑन द स्पेसिफिक टीम. वाइस कैप्टन बन गए, उनको बाहर बैठा दिया. आई हैव नो इश्यूज विद दैट. सो इसलिए एवरीबडी शुड एक्सरसाइज देयर ओन राइट्स. इससे बड़ा अच्छा चलता है सब कुछ और फिर जिम्मेदारी भी लेनी पड़ती है. तो अब गोइंग फॉरवर्ड आपने बाबर की बात की. अगेन आई मीन पॉसिबली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन इन हिस्ट्री बाबर आजम. तो इससे ज़्यादा उसका प्यार और इज़्ज़त उसके साथ कौन कर सकता है जितनी हम सब करते हैं. मगर आप लोगों के अंदर से ही ये बात चली और क्रिकेटर्स के अंदर से भी ये बात चली कि क्या इज़ ही द राइट मैन फॉर द राइट जॉब इन ऑल 3 फॉर्मेट्स. ये मैं तो ये इस किस्म की सोच भी नहीं सकता. ये एक्सपर्टीज़ चाहिए
آپ میں سے بہت سے لوگ ہیں جو فالو کرتے ہیں, جن کی بڑی اچھی امپورٹنٹ رائے ہے, اور اس طریقے سے اور بھی کرکٹرز بھی ہیں اور بھی سلیکٹرز بھی ہیں, ہر کی اپنی اپنی رائے ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ پری میچور ہے کہ ہم اس چیز کے اوپر زیادہ بات کریں. جب وقت آئے گا تو پھر دیکھا جائے گا. اب آگے نیوزی لینڈ کی سیریز آ رہی ہے, سلیکٹر ایک آ گیا ہے, اور اس وقت تک آئی تھنک باقی 2-3 جو سلیکٹرز آنے ہیں وہ بھی آ جائیں گے. دین آئی ول سیک دیئر گائیڈنس, آئی ول آلسو سیک ایوری بڈی ایلسز گائیڈنس. تو میں نہیں سمجھتا کہ دیر از اینی تھریٹ اور پریشر آن بابر. وی وانٹ ہم ٹو پلے فل تھروٹل اینڈ انشاءاللہ وی ول سپورٹ ہم ایٹ ایوری لیول. سیٹھی صاحب, آپ نے پچھلے دور میں اپنے اسپاٹ فکسنگ کے حوالے سے بڑا کلیئر سٹانس لیا تھا کہ جن پلیئر نے سزا پوری کر لی ہے ان کو واپس کھیلنا چاہیے. لیکن ابھی جو ریسنٹلی چیف سلیکٹر تھے شاہد افریدی, انہوں نے یہ کیٹیگوریکلی کہا کہ جو 3 میچز کھیل بھی چکا ہے, ایسا پلیئر جو کہ سزا مکمل کر کے 3 انٹرنیشنل میچز کھیل چکا ہے, اس کو گرین سگنل نہیں ملا آپ کی طرف سے. اچھا, آپ کا اسپاٹ فکسنگ کے حوالے سے کیا سٹانس ہے؟ اچھا, بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جب میں کہتا ہوں کہ میں چیف سلیکٹر کے ایشوز کے اندر انٹرفیئر نہیں کرتا, تو چیف سلیکٹر جو ہے اتنا تکڑا ہونا چاہیے نا کہ اگر میں انٹرفیئر کروں تو مجھے ریزسٹ کرے. تو اگر انہوں نے میں نے اگر کہا اور انہوں نے نہیں ریزسٹ کیا تو پھر شاید اٹس ناٹ مائی فالٹ. مگر بات یہ ہے, ایسی بات نہیں ہوتی. ہوتا یہ ہے کہ سب مل جل کے ہی بات چیت چلتی ہے, اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب سلیکٹرز میرے پاس آتے ہیں کچھ لے کے, تو ظاہر ہے انہوں نے اپنا فارم, بٹ کانسٹیٹیوشنلی آئی ہیو ٹو سائن آف آن اٹ. یہ اسی قسم کی چیز ہے جیسے کہ پرائم منسٹر کو ایک اوپر بھیجتا ہے بل, پریزیڈنٹ صاحب سائن کریں, کانسٹیٹیوشنلی ہیز ٹو سائن, بٹ ہی ہیز دا رائٹ ٹو آسک کوشچنس, ہی آلسو ہیز دا رائٹ ٹو سینڈ اٹ بیک. مگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر وہ ٹک جائے کہ نہیں آپ نے کرنا ہے, تو دین آئی ہیو ٹو سائن. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کنسلٹیشن چلتی رہتی ہے اور اچھی چلتی رہتی ہے, اور گیو اینڈ ٹیک ہوتی ہے. اور میں ٹیکنیکلی آئی ول نیور انٹرفیئر, ٹیکنیکلی آئی ول نیور انٹرفیئر ان ٹیم سلیکشن, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آئی ہیئر آل یور وائسز, آئی ہیئر مینی ٹیکنیکل ایکسپرٹس سیئنگ سم تھنگ ڈفرنٹ. سو اٹس میرا حق ہے کہ میں پھر آئی ریز دیز پوائنٹس ود دا سلیکٹرز, دین اٹس دیئر ڈیسیژن. سوری, جی میں آپ کو بتاؤں میں نے بڑا سخت سٹانس لیا تھا, مگر مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے میرے سے پہلے اور میرے سے بعد جو آئے انہوں نے اتنا سخت سٹانس نہیں لیا. یہ میرا ایک موقف رہا ہے. 2 چیزیں, ایک تو معاف نہیں کرنا, دوسرا یہ ہے کہ جو پینلٹی ہے اس کے بعد اگر آپ کر جائیں تو پھر آپ کا حق ہے کہ آپ آ کے کھیلیں, اف یو کین بی سلیکٹڈ. اب میں آپ کو بتاؤں, مجھے پتا ہے آپ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں, تو کھل کے بات کرنی چاہیے. جب میں گیا تھا تو اس وقت ایک کھلاڑی کی ابھی پینلٹی چل رہی تھی, جو کہ ہمارے دور میں اس کو پینلٹی لگائی گئی تھی ان کے اوپر. جب میں چلا گیا تو انہوں نے ان کی پینلٹی ختم کرا دی گئی پہلے سے ہی, اور ان کو کھلانا شروع کر دیا. ٹھیک, ایز فار آئی ایم کنسرن, میرے ذہن میں تو یہ ہے کہ پینلٹی پوری ہونی چاہیے. تو پینلٹی پوری اب ہو جائے گی تو دیٹس اوکے, نو پرابلم. اسی طریقے کے ساتھ جن لوگوں نے پینلٹیز پوری کر لی ہیں, لائک سے آصف, ناٹ آصف تو خیر آؤٹ ہو گیا, عامر. اب عامر از ریٹائرڈ ایز ہی, اب وہ اگر ریٹائرمنٹ سے باہر آنا چاہتا ہے تو جو رولز ہیں آپ کے پی سی بی کے یا ڈومیسٹک کرکٹ کے, ویلکم. آپ ریٹائرمنٹ نے آپ نے اناؤنس کی تھی, آپ کم آؤٹ آف ریٹائرمنٹ, پلے, بی سلیکٹڈ اینڈ پلے. سلیکشن نہیں ہوتی, کانٹ پلے. سیٹھی صاحب, چودھری صاحب لیفٹ سائڈ. ہاں جی سیٹھی صاحب, غیر ملکی ٹیموں کی آمد بھی یہاں پہ شروع ہو چکی ہے, اور پی ایس ایل میں بھی کافی بڑی تعداد میں 36 غیر ملکی پلیئرز شامل ہیں. سیکورٹی ٹیم پی سی بی کی, اس میں کوئی تبدیلیاں آئی ہیں, اس حوالے سے کچھ بتا دیں. میرا تو خیال تھا اب یہ پہلا سوال پوچھیں گے. بات یہ جی کہ آج کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں, اور جو سیکیورٹی اینڈ ویجیلنس سٹاف ہے اس میں تبدیلیاں ہوئی ہیں. اور کرنل اعظم جو کہ میرے زمانے میں ڈائریکٹر تھے, وہ آج کل آپ کو پتہ ہے ہی از ود دی آئی سی سی ان دبئی. ظاہر ہے ہائیلی کمپیٹنٹ, گریٹلی کمپیٹنٹ مین. آئی سی سی نے ان کو لے لیا جب یہاں سے ان کو فارغ کیا گیا. تو اب آئی ہیو ریکویسٹڈ ہم ٹو کم بیک ایز اے کنسلٹنٹ, اینڈ آئی ایم آلسو چینجنگ دی ویجیلنس اینڈ دی سیکورٹی ایڈمنسٹریشن ہیئر, اینڈ آئی ایم برنگنگ بیک. دیکھیے
आई एम ब्रिंगिंग बैक पीपल आई नो, जिनके साथ मैंने काम किया हुआ है, जिनको मैं समझता हूँ ज्यादती की, उनके साथ उनको निकाल दिया गया जो जस्ट बिकॉज वो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा थे। ऐसे नहीं होना चाहिए। दे आर ऑल कॉम्पिटेंट पीपल, दे डिड अ ग्रेट जॉब। जब बहुत टेंशन थी मैच फिक्सिंग की और पाकिस्तान में आने की एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो उस टीम के साथ मैंने काम किया हुआ है, मुझे पता है उनकी अहलियत क्या है, क्या कॉम्पिटेंस लेवल है। तो इसलिए हर बंदा चाहता है अपनी टीम लाए और अपनी टीम के साथ काम करे। तो इसलिए कर्नल आजम हैज़ कंसेंटेड टू एक्ट एज अ कंसल्टेंट टू अस। वो यहाँ भी टाइम स्पेंड करेंगे, वहाँ भी अपना काम करेंगे, मगर साथ साथ हमने यहाँ और भी इंटरनली कुछ तब्दीलियाँ की हैं। कुछ लोग चले गए हैं और कुछ लोग आ रहे हैं। सेठी साहब, मेरा सवाल जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है पाक भारत क्रिकेट की बहाली के हवाले से। तो इस पर कोई थोड़ी सी नज़रसानी करें कि पाकिस्तान और भारत के जो क्रिकेट मैचेस हैं पूरी दुनिया के अंदर आपको पता है बहुत शौक से देखे जाते हैं और उसके व्यूवर्स की तादाद भी बहुत ज़्यादा होती है। तो पाकिस्तान के लोग भी चाहते हैं कि भारत की टीम यहाँ आए और भारत वाले भी चाहते हैं कि पाकिस्तान की टीम वहाँ जाएँ। तो इस हवाले से कुछ आप कुछ करने की तैयारी करके बैठे? भारत वाले चाहते हैं कि वो यहाँ ना आए और वो चाहते हैं कि हम वहाँ जाएं। ये पुराना मसला, कोई नया मसला तो है नहीं। ये एशियन क्रिकेट कप भी है, उसको भी इफ़ेक्ट करता है। आगे जो चैम्पियनशिप्स आ रही हैं जो भारत में होंगी, उस सब चीज़ों को इफ़ेक्ट करता है। मेरा ख्याल है मार्च में अब पहला राउंड तो हमारा होगा एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंदर टू डिस्कस व्हाट्स द वे फॉरवर्ड। और उसके बाद फिर जब मार्च के अंदर मेरा ख्याल ICC की मीटिंग्स हैं, वहाँ भी आई विल टेक अप दीज इश्यूज़। अगेन मैं सिर्फ आपसे ये कहूँगा कि मैंने वहाँ क्या आर्ग्यू करना है, क्या कहना है, वो मैं पब्लिक में नहीं कहना चाहता। एक दफ़ा आप पब्लिक में कोई स्टेटमेंट कह दें फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है वहाँ से आगे बढ़ना या पीछे हटना। तो इसलिए बेहतर यही है कि ये जो नेगोशिएशन जो होती है उसके अंदर अपने ऑप्शंस अपने पास रखने चाहिए, अक्रॉस द टेबल बैठ के हैमर करने चाहिए। तो बस यहाँ तक मैं आपको सवाल का जवाब दूँ। क्या बेहतर तवक्कुआत की जा सकती है? हमेशा बेहतर तवक्कुआत की जा सकती है, मगर कभी कभी पूरा नहीं होती तभी। हाँ जी सेठी साहब, जैसा कि आपको मालूम है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को मकबूल फैसले करने की जितनी इस वक्त ज़रूरत है इससे पहले कभी नहीं हुई। हम नहीं चाहते कि आप या कोई भी चेयरमैन मार्च या जुलाई में जब भी इंटरनल गवर्नमेंट आए तो साथ वो भी चला जाए, चेयरमैन PCB। तो आप चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा है कि प्लेइंग 11 का इख्तियार कप्तान के पास है। कौमी टीम का कप्तान मुकर्रर करना मेरा आईनी हक है। अहम खबर आपको देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क में बिजली के तातुल का सख्त नोटिस। वज़ीर आज़म ने आला सतह तहकीकात का हुक्म दे दिया है। वज़ीर आज़म ने तहकीकात के लिए आला सतह कमेटी तश्कील दे दी है। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर से फौरी रिपोर्ट भी तलब कर ली है। अहम खबर, बिजली का बहरान कैसे पैदा हुआ आगाह किया जाए। वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया है, उनकी जानिब से हिदायत की गई है कि जिम्मेदारान का तयन किया जाए, अवाम को परेशान न किया जाए, अवाम की मुश्किलात बर्दाश्त नहीं है। वज़ीर आज़म की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है। तो आपको बता दें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में बिजली के तातुल का सख्त नोटिस लिया है और नोटिस लेते हुए वज़ीर आज़म ने आला सतह तहकीकात का हुक्म दे दिया है।